Welcome to my channel Education Rajesh Malla। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক স্বৰবৰ্ণৰ ব্যৱহাৰ শিকাম। স্বৰবৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰি আখৰবোৰৰ মাত্ৰা কেনেকৈ লিখা হয় আৰু ইহঁতৰ উচ্চাৰণ কেনেকৈ কৰা হয়। স্বৰবৰ্ণ থকাৰ কাৰণে আমি মাত্ৰা লিখিব পাৰোঁ। স্বৰবৰ্ণৰ পৰাই মাত্ৰা হয়, মাত্ৰা লিখিব পাৰোঁ। আনহাতে মাত্ৰা নথকাকৈ আমি শব্দ লিখিব নোৱাৰোঁ আৰু শব্দ নহ'লে আমি বাক্য ৰচনাও কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এই স্বৰবৰ্ণ খুবেই দৰকাৰী। স্বৰবৰ্ণৰ পৰাই আমি মাত্ৰা লিখোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক স্বৰবৰ্ণৰ ব্যৱহাৰ শিকাম। স্বৰবৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰি আখৰবোৰৰ মাত্ৰা কেনেকৈ লিখা হয় আৰু ইহঁতৰ উচ্চাৰণ কেনেকৈ কৰা হয়। স্বৰবৰ্ণ থকাৰ কাৰণে আমি মাত্ৰা লিখিব পাৰোঁ। আনহাতে মাত্ৰা নথকাকৈ আমি শব্দ লিখিব নোৱাৰি আৰু শব্দ নহ'লে আমি বাক্য ৰচনাও কৰিব নোৱাৰোঁ। ঠিক আছে বন্ধুসকল, তাৰমানে স্বৰবৰ্ণ খুবেই প্ৰয়োজনীয়। এনেতো স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জনবৰ্ণ আছে, কিন্তু স্বৰবৰ্ণ সদায় মাত্ৰা লিখাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হয়। স্বৰবৰ্ণ নহ'লে আমি মাত্ৰা লিখিব নোৱাৰোঁ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्वरवर्ण का इस्तेमाल, स्वरवर्ण कैसे इस्तेमाल होता है, स्वरवर्णों का इस्तेमाल सिखाऊंगा। वर्णों का इस्तेमाल करके अक्षरों के साथ 12 खड़ी, जैसे अक्षर होता है क ख ग घ, इसके ऊपर 12 खड़ी कैसे होता है, ये स्वरवर्ण के द्वारा ही होता है। साथ 12 खड़ी कैसे बनता है, स्वरवर्णों के कारण ही हम 12 खड़ी लिख पाते हैं। 12 खड़ी लगाने पर ही शब्द बनता है, या तो हम शब्द लिख पाते हैं। ठीक है, 12 खड़ी के बिना शब्द हम लिख नहीं पाते, तो 12 खड़ी होगा तभी शब्द लिखेंगे। 12 खड़ी शब्दों के वजह से ही हम वाक्य रचना कर पाते हैं। शब्द नहीं होगा तो वाक्य रचना भी हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए स्वरवर्ण बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्वरवर्ण का इस्तेमाल, स्वरवर्ण कैसे इस्तेमाल होता है, 12 खड़ी के ऊपर स्वरवर्ण कैसे लगता है, तो वर्णों का उच्चारण सिखाऊंगा। स्वर वर्णों का इस्तेमाल करके अक्षरों के साथ 12 खड़ी कैसे बनता है, स्वर वर्णों के कारण ही हम 12 खड़ी लिख पाते हैं। 12 खड़ी लगाने पर ही हम शब्द लिख पाते हैं, और शब्द होने पर ही या शब्द के वजह से ही हम वाक्य रचना कर पाते हैं। तो शब्द नहीं होगा तो हम वाक्य भी नहीं बना पाएंगे, इसलिए स्वरवर्ण बहुत ज़रूरी होता है। स्वरवर्ण होगा तो हम उस 12 खड़ी लिख सकते हैं। आकार इकार उकार, कोई शब्द बनता है आकार इकार उकार से ही तो बनता है, तो ये क्या है कि 12 खड़ी। বন্ধুসকল, স্বৰবৰ্ণ তো আপোনালোক জানেই, আগৰ চেপ্টাৰতো মই শিকাই আহিছোঁ, আগতো শিকাই আহিছোঁ স্বৰবৰ্ণ কাক বোলে। তো যিবিলাক বৰ্ণ কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ নিজে নিজে উচ্চাৰণ হয় তাকেই স্বৰবৰ্ণ বলা হয়। মানে যিবিলাক বৰ্ণ কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ নিজে নিজে উচ্চাৰণ হয়, যেনে সৰিয় সৰিয়া হৰ্ষই দীৰ্ঘই হ্ৰস্বউ দীৰ্ঘউ হ্ৰস্বৰি, এইবিলাক নিজে নিজে উচ্চাৰণ হৈ আছে, কাৰো সহায় লোৱা নাই। तो दोस्तों, स्वरवर्ण तो आप जानते ही होंगे। स्वरवर्ण पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जो वर्ण किसी दूसरे वर्णों का सहायता न लेते हुए अपने आप उच्चारण होता है उसे स्वरवर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, स्वरवर्णों
किसे कहते हैं? स्वर वर्ण मतलब जो वर्ण अपने आप उच्चारण होता है, जैसे अ आ ई, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, ये सब है स्वर वर्ण। ये स्वर वर्ण जो है, ये स्वर वर्ण के वजह से ही हम 12 अक्षरी लिख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण किसी का सहायता नहीं लेता। বন্ধুসকল স্বৰবৰ্ণ জানা? স্বৰবৰ্ণ কাক বোলে? যিবিলাক বৰ্ণ কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ নিজে নিজে উচ্চাৰণ হয় তাকেই স্বৰবৰ্ণ বোলা হয়। যেনে স্বৰে স্বৰে হৰ্ষই দীৰ্ঘ এইবিলাক হ'ল স্বৰবৰ্ণ। दोस्तों स्वरवर्ण तो आप जानते ही होंगे, जो वर्ण किसी दूसरे वर्णों का सहायता न लेते हुए अपने आप उच्चारण होता है उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। जैसे अ आ ई उ, ये सब स्वर वर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, स्वर वर्ण समझ गए? স্বৰ বৰ্ণৰ ব্যৱহাৰ। স্বৰ বৰ্ণ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, অৰ্থাৎ স্বৰ বৰ্ণবোৰ লগাই আমি মাত্ৰা কেনেকৈ লিখোঁ, অৰ্থাৎ স্বৰ বৰ্ণৰ ব্যৱহাৰ, স্বৰ বৰ্ণ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয়। ঠিক আছে, স্বৰ বৰ্ণৰ ব্যৱহাৰ মই শিকাম। যেনেকুৱা স্বৰেয়, স্বৰেয়, স্বৰেয়ত সদায় অ উচ্চাৰণ হয়, অকাৰ নহয় কিন্তু অ উচ্চাৰণ। এনে যেনেকুৱা ক কওঁতে ক অ উচ্চাৰণ হৈছে নহয়, কাৰ সহায় লৈছে? স্বৰ বৰ্ণৰ সহায় লৈছে। তাৰ কাৰণে এইটো ক, খ, গ, ঘ, এইবোৰ হ'ল স্বৰ বৰ্ণ। স্বৰ বৰ্ণ যেনেকুৱা আমি এটা শব্দ লিখিম ঘ পেট কাটৰ ঘৰ। এইবাৰ স্বৰেয়া, স্বৰেয়া, স্বৰেয়াত কি হয়? স্বৰেয়াত সদায় আকাৰ হয়। আকাৰ, আকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে স্বৰেয়া, স্বৰেয়া দি আকাৰ হয়। যেনে ক তাকাৰে কা, খ তাকাৰে খা, গ তাকাৰে গা, ঘ তাকাৰে ঘা, চ তাকাৰে চা, ছ তাকাৰে চা, বৰকাই জ তাকাৰে যা, ঝ তাকাৰে ঝা। এতিয়া এটা শব্দ যেনেকুৱা কাগজ, ক তাকাৰে কা, গ বৰকাই জ, কাগজ, এইটো এটা শব্দ হ'ল। এইবাৰ হৰ্ষ ই, হৰ্ষ ইত আমি হস্যিকাৰ লিখিব পাৰোঁ। যেনে ক হস্যিকাৰে কি, খ হস্যিকাৰে খি, গ হস্যিকাৰে ঘি, ঘ হস্যিকাৰে ঘি, প্ৰথম চ হস্যিকাৰে চি, দ্বিতীয় ছ হস্যিকাৰে ছি, বৰকাই জ হস্যিকাৰে জি, ঝ হস্যিকাৰে ঝি। এটা শব্দ হ'ল যেনেকুৱা খ হস্যিকাৰে খি, পেট কাটৰ হস্যিকাৰে ৰি, ক হস্যিকাৰে কি, খিৰিকি, খিৰিকি এটা শব্দ হ'ল। এইবাৰ দীৰ্ঘ ই, দীৰ্ঘ ইত সদায় দীৰ্ঘিকাৰ হয়। দীৰ্ঘ ইত সদায় দীৰ্ঘিকাৰ, দীৰ্ঘিকাৰৰ দীঘলকৈ টানিব লাগে কথাটো, মানে ক'ব লাগে। যেনেকুৱা দীৰ্ঘ ই, দীৰ্ঘ ইত দীৰ্ঘিকাৰ, কত দীৰ্ঘিকাৰে কি, খত দীৰ্ঘিকাৰে খি, গত দীৰ্ঘিকাৰে গি, ঘত দীৰ্ঘিকাৰে ঘি, প্ৰথম চত দীৰ্ঘিকাৰে চি, দ্বিতীয় ছ দীৰ্ঘিকাৰে ছি, এনেকৈ। যেনেকুৱা এটা শব্দ হ'ল জীৱন, বৰকাত জ দীৰ্ঘিকাৰে জি, ব দন্তান্য, জীৱন। এইবাৰ হস্যৌ, হস্যৌত সদায় হস্যুকাৰ হয়। যেনেকুৱা হস্যুকাৰে কু, খত হস্যুকাৰে খু, গত হস্যুকাৰে ঘু, ঝত হস্যুকাৰে ঝু, এইবিলাক হস্যুকাৰ। হস্যুকাৰ যেনেকুৱা আমি এটা শব্দ লিখিম গুণ। এইবাৰ দীৰ্ঘ উ, দীৰ্ঘ উ, দীৰ্ঘত সদায় দীৰ্ঘুকাৰ হয়। কত দীৰ্ঘুকাৰে কু, খত দীৰ্ঘুকাৰে খু, অলপ দীৰ্ঘ উচ্চাৰণ হয়, তাৰ কাৰণে এইটো দীৰ্ঘ উ বুলি কোৱা হয়। খু, গু, চু, জু, এনেকৈ উচ্চাৰণ হ'ব। কুচ্ছিত, আমি কুচ্ছিত লিখিবলৈ গ'লে কত দীৰ্ঘুকাৰে কু, খণ্ডাত দন্তাই ছ হস্যিকাৰে চি, ত কুচ্ছিত, এইটো এটা শব্দ হ'ল। এইবাৰ হস্যৰি, হস্যৰিত যেনেকুৱা ৰি ফুলা, ৰিকাৰ হয়, ৰি ফুলা বুলি কয়। কত ৰিকাৰে ক্ৰি, খত ৰিকাৰে খ্ৰি, গতি গ্ৰি গ্ৰি, ঘ্ৰি, চ্ৰি, শ্ৰী, জ্ৰি, এনেকৈ আমি লিখোঁ। যেনেকুৱা গত ৰি ফুলা গৃহ, গৃহ, গৃহ মানে জানাই ঘৰ। এইবাৰ এত হয় সদায় একাৰ। এত কি হয়? একাৰ। যেনে কত একাৰে কে, খত একাৰে খে, গত একাৰে গে, ঘত একাৰে ঘে, প্ৰথম চত একাৰে চে, বৰকাই জত একাৰে জে, ঝত একাৰে ঝে, এইবোৰ হ'ল একাৰ। এত সদায় একাৰ হয়। যেনেকুৱা কেটলি, আমি কত একাৰে কে, ট লৈ হস্যিকাৰে কত কেটলি লিখিব পাৰোঁ। ঐ, ঐত সদায় ঐকাৰ হয়। কত ঐকাৰে কৈ, খত ঐকাৰে খৈ, গত ঐকাৰে গৈ, ঘত ঐকাৰে ঘৈ, চত ঐকাৰে চৈ, দ্বিতীয় ছত ঐকাৰে ছৈ, বৰকাই যত ঐকাৰে ঝৈ, জৈ, ঝত ঐকাৰে ঝৈ। যেনেকুৱা এটা আমি
শব্দ লিখিম গৈছিল, গৈছিল এইটো এটা শব্দ হ'ল ঐকাৰ। এইবাৰ অ, কত অকাৰে ক, খ তকাৰে খ, অত সদায় অকাৰ হয়। গ তকারে গ, ঘ তকারে ঘ, প্রথম চ তকারে চ, দ্বিতীয় ছ তকারে ছ, বর্গাই জ তকারে জ, ঝ তকারে ঝ। এইটো এটা আমি শব্দ লিখিম যেনেকুৱা ছোৱালী, ছোৱালী, দ্বিতীয় ছ তকারে ছ, উৱা তকারে আ, ল দীৰ্ঘকাৰে লি, ছোৱালী। এইবাৰ ঐ, ঐ, ঐত সদায় কি হয় যেনেকুৱা সরি ঔ, ঔকার, ঔকার, ও ঔ, ঔ সদায় ঔকার হয়। ক তকারে কৌ, খ তকারে খৌ, গ তকারে গৌ, ঝ তকারে ঔকাৰে ঝৌ, যেনেকুৱা গৌৰৱ আমি এটা শব্দ লিখিম নহয়। আকৌ ৰিপিট কৰি কৈছোঁ যে এ সদায় একাৰ, ক তেকাৰে কে, খ তেকাৰে খে, সদায় একাৰবিলাক এ দি একাৰে হয়। এইবাৰ ঐ দি ঐকাৰ হয়। ক তৈকাৰে কৈ, খ তৈকাৰে খৈ, গ ঐকাৰে গৈ, যেনেকুৱা এটা শব্দ গৈছিল। অত সদায় অকাৰ হয়। অত কি হয় সদায় অকাৰ হয়। যেনেকুৱা ক তকাৰে ক, খ তকাৰে খ, গ তকাৰে গ, যেনেকুৱা আমি ছোৱালী, তেতিয়া ছ তকাৰে ছ, উৱা আকাৰ, ল দীৰ্ঘিকাৰ লি, ছোৱালী, ছোৱালী মানে হিন্দীত ক'ব লড়কি। এইবাৰ ঔ সদায় ঔকাৰ হয়। ক তকাৰে কৌ, খ তকাৰে খৌ, যেনেকুৱা আমি শব্দ লিখো গৌৰৱ, গ তকাৰে গৌ, পেটকাট ৰ, উৱা গৌৰৱ। स्वर वर्णों का इस्तेमाल, जैसे कि असमिया में सिखा दिया मैंने, अब हिंदी में भी स्वर वर्णों का इस्तेमाल कैसे होता है। स्वर वर्णों का इस्तेमाल हिंदी में, जैसे कि अब हिंदी बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे अ से हमेशा अ उच्चारण होता है। जैसे क, ख, ग, ये हमेशा अ का उच्चारण सहारा लेके ही उच्चारण हो रहा है, इसलिए ये व्यंजन बन रहा है। ये स्वर वर्ण नहीं है, स्वर वर्ण है अ का सहारा लेके उच्चारण हो रहा है। क, ख, ग, घ। जैसे हम एक शब्द लिखेंगे कलम, इस बार आ से हमेशा आ होता है। जैसे क, का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, हमेशा आ से आ होता है, आ। ठीक है। जैसे एक शब्द गाय, गाय, ई, छोटा ई, छोटा ई से हमेशा ई का मात्रा होता है। जैसे छोटा ई का मात्रा की, खी, घी, घी, ची, छी, जी, झी। एक शब्द होगा इससे, जैसे हम एक शब्द लिखेंगे ग से गी, छोटा ई, गिनती, गिनती। अब बड़ा ई आ गया, बड़ा ई, जैसे बड़ा ई से हमेशा दीर्घी का मात्रा, जैसे बड़ा ई का मात्रा होता है, उसको असमिया में दीर्घिकार कहते हैं। तो क्या है कि ई का मात्रा की, खी, गी, घी, ये थोड़ा लंबा खींचेंगे तब ये बड़ा ई का मात्रा होता है। जैसे झील, हम झील लिखते हैं ना, झील। अब छोटा ऊ से हमेशा कु, खु, गु, घु, चु, मतलब धीरे से उच्चारण होता है, कु, खु, जु, ऐसे करके। तो दोस्तों इससे हम एक शब्द लिखेंगे, जैसे गुनाह। गुनाह भी एक शब्द है, गुनाह। अब बड़ा ऊ से हमेशा बड़ा ऊ का मात्रा होता है, जिसको हम असमिया में दीर्घुकार कहते हैं, दीर्घुकार। जैसे कु, खू, गु, घू, चू, जू, छू, झू, ये सब मतलब बड़ाऊ का मात्रा होता है। ठीक है दोस्तों, स्वरवर्णों का इस्तेमाल 12 खड़ी के लिए कैसे किया जाता है। अ से हमेशा अ उच्चारण होता है। आ से हमेशा आ उच्चारण होता है। जैसे कि ई से, छोटा ई से हमेशा ई उच्चारण होता है, और बड़ा ई से हमेशा ई उच्चारण होता है, और छोटा ऊ से हमेशा ऊ उच्चारण होता है, और बड़ा ऊ से हमेशा ऊ उच्चारण होता है। जैसे कू, खू, ये है बड़ा ऊ का उच्चारण। जैसे झूठ, हम झूठ लिखेंगे तो झ
बड़ा ऊ का मात्रा होता है ओठा। ठीक है, झूठ। छोटा ऊ से कू, खू, ऐसे। तो ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। अब ए से हमेशा ए होता है, के, खे, गे, घे। जैसे हम असमिया में ए कार कहते हैं, असमिया में क्या कहते हैं, ए कार कहते हैं। तो ए से हमेशा ए उच्चारण होता है, जैसे के, खे, गे, घे, छे, छे, जे, झे। ठीक है, जैसे हम खेत लिखेंगे तो खेत, खेत। ऐसे हमेशा कई, खई, गई, ये ऐ का मात्रा होता है। ठीक है, कई, खई, गई, ये 12 खड़ी में ऐ का मात्रा होता है, 12 खड़ी। तो जैसे कि खैरियत, हम खैरियत लिखेंगे तो खैरियत ऐसे लिखते हैं। इस बार ओ से हमेशा ओ का 12 खड़ी होता है, जैसे खो, को, खो, गो, घो, चो, छो। ये हमेशा ओ उच्चारण ओ से। ठीक है, ओ से हमेशा ओ का मात्रा या 12 खड़ी लगता है। जैसे हम कोयल लिखेंगे, कोयल, कोयल। औ से हमेशा औकार या अर्थात औ का मात्रा लगता है। तो औ से औ का 12 खड़ी, जैसे कऊ, खऊ, गऊ, घऊ, चऊ, छऊ, जऊ। ये औ का 12 खड़ी बन गया, झऊ। अब हम गौरव लिखेंगे तो गौरव, जैसे गौरव, ये भी एक शब्द बन गया। जैसे अंग के कंग, खंग ऐसे लिखते हैं हम। अंग का मात्रा या अंग का जो 12 कड़ी होता है, कंग, खंग, गंग, खंग, चंग, छंग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक बिंदु लगा देने से अंग हो जाएगा, जैसे अंग का मात्रा हो जाएगा। जैसे कंपन या कंपनी, कंपनी, कंपनी ऐसे लिखते हैं हम। क के ऊपर एक बिंदु रहेगा, नी, कंपनी। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे। ए से हमेशा ए का मात्रा होता है, ऐ से हमेशा ऐ का मात्रा, ऐ का 12 खड़ी होता है या मात्रा ही कहते हैं असमिया में। और ओ से हमेशा ओ का 12 खड़ी होता है, औ से हमेशा औ का 12 खड़ी होता है। अंग से हमेशा बिंदु का, जैसे कंग, खंग, गंग ऐसे, ये सब 12 खड़ी होते हैं। तो ये जो स्वर वर्ण है, इधर साइड में स्वर वर्ण दिया गया है, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ये स्वर वर्ण है। ये सी स्वर वर्ण से ये मात्रा बन रहा है, या तो 12 खड़ी बन रहा है। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो में उल्लेखित असमिया शब्दों का उच्चारण हिंदी में लिखकर और इनके हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस वीडियो में उल्लेखित असमिया शब्दों का उच्चारण, इस वीडियो में जो मैंने असमिया शब्द उच्चारण किया है, लिखा है, तो उसी असमिया शब्द का उच्चारण हिंदी में लिखकर बताऊंगा और इनके हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। असमिया का जो मीनिंग होता है, ट्रांसलेशन, उसको मैं असमिया में करके बताऊंगा। तो दोस्तों, क्या है कि इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। अब घोर, घो पेट काट रो, घोर, जिसको हम हिंदी में ऐसे लिखेंगे, घोर। घोर को हिंदी में क्या कहते हैं, घर। असमिया में कागज, असमिया में क्या कहेंगे, कागज। इसको उच्चारण हिंदी में ऐसे लिखेंगे, कागज, कागज। और कागज का हिंदी अर्थ होगा जैसे कागज, हिंदी अर्थ होगा कागज। अब खिड़की, असमिया में हम खिड़की लिखेंगे, खिड़की, हिंदी में खिड़की, खिड़की। अब खिड़की का हिंदी मीनिंग है खिड़की। जीवन,
আমি জীবন, জীবন অসমীয়াত जीवन लिखो, जीवन को हम हिंदी में ऐसे जीवन ऐसे लिखेंगे और हिंदी में इसका मीनिंग होगा जीवन। गुण, गुण, गुण को हम हिंदी में ऐसे उच्चारण लिखेंगे गुण, 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 जिसको गुण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे घर, घर को हम लिखते टाइम में घोर लिखेंगे, हिंदी में उच्चारण घोर होगा, असमिया में उच्चारण घोर होता है और हिंदी में उसको घर कहते हैं। कागज, असमिया में उच्चारण होगा कागज, लिखते टाइम में हिंदी में ऐसे कागज लिखा है जो कागज ऐसे लिखेंगे और हिंदी में उसका मीनिंग होगा कागज। खिड़की, खिड़की, खिड़की ऐसे लिखेंगे और इसका मीनिंग होगा खिड़की। जीवन, जीवन, इसको हम हिंदी में ऐसे जीवन लिखेंगे लेकिन इसका मीनिंग होगा जीवन। ठीक है दोस्तों, अब कुत्सित, कुत्सित, इसको हम ऐसे लिखेंगे कुत्सित हिंदी में और कुत्सित का हिंदी मीनिंग होगा बदसूरत, जब सूरत नहीं है जिसका बदसूरत होता है उसको कुत्सित कहते हैं। एक बार गृहो, 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 हम इसका उच्चारण गृहो कहेंगे अर्थात गृह, गृह मतलब घर, जिसको हिंदी मीनिंग है गृह। गोइसिल, गोइसिल, गोइसिल हमको हिंदी में ऐसे लिखेंगे गोइसिल और इसका मीनिंग होगा, हिंदी मीनिंग होगा गया था। गोइसिल मतलब गया था। एक बार गौरव, गौरव, गौरव ऐसे लिखेंगे हिंदी में। अब हिंदी में इसका माने होगा गौरव, जैसे गौरव को हम हिंदी में गौरव, गर्व जिसको कहते हैं, गर्व करते हैं ना उसको गौरव कहते हैं, गौरव व गर्व। ठीक है, कुत्सित बदसूरत, गृह मतलब घर जिसको गृह कहते हैं, गोइसिल मतलब गया था, गौरव मतलब गर्व या गौरव कहते हैं हम। ठीक है दोस्तों, असमिया का हिंदी मीनिंग समझ गए होंगे। कुत्सित मतलब बदसूरत, गृह मतलब घर, गोइसिल मतलब गया था, गौरव मतलब गौरव। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को हमेशा देखते रहना और अगर समझाने में कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे गलतियों को सुधारने का मौका देना। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों को सही तरह से समझा सकूं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को हमेशा देखते रहना और अगर समझाने में मैं आप लोगों को समझाता हूँ, अगर समझाने में कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे गलतियों को सुधारने का मौका देना दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों को सही तरह से समझा सकूं, ताकि कोई गलती ना हो समझाने में। ठीक है दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप मेरे वीडियो को देखकर हमेशा असमिया और हिंदी सीख सको। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।